all, hope you all are doing very good. Today, students, we have to start our fourth chapter of class 8, which is about combustion and flame. Okay, chalo. So, let's begin our chapter with some introductory lines first of all. Okay, see, one of the milestones in the history of civilization was the invention of fire. Fire is a source of heat energy. We need fire to cook, to run automobiles, to run industries, and the list is endless. What is fire? Fire is caused when a substance is burnt in air and it produces heat and light. So the process of burning of a substance in the presence of oxygen or air to produce controlled amount of heat and light is called combustion. So you will understand this by doing the following activity. So first of all, student क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन में एक बहुत ही ग्रेट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव किया था, दैट वाज द इन्वेंशन ऑफ फायर. ठीक है, फायर को इन्वेंट करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो कि आज और आने वाले समय में भी क्या एक बहुत सारी जगह या बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं. इट इज वेरी यूजफुल. फायर क्या है? फायर हीट एनर्जी का एक सोर्स है. इसको हम खाना बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए, इंडस्ट्रीज रन करने के लिए, एंड देयर इज एन एंडलेस लिस्ट वेयर द फायर और द हीट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड. ओके, चलो. So what is fire? Basically fire है क्या? So fire is caused when a substance is burnt. जब किसी भी एक substance को हम burn करते हैं, है ना, और वो burn करने के बाद जब heat and light produce करता है, that means there has been the fire caused. ठीक, so that means एक ऐसा process जहाँ पे किसी substance को burn किया जाता है ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, और फिर वो एक क्या considerable amount of heat and energy, light energy produce करता है. So such a process is known as combustion. So यहाँ इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में, combustion के बारे में पढ़ेंगे. First of all, what are the conditions for combustion? Combustion के लिए क्या क्या conditions है जो कि जरूरी हैं? So there are basically 3 conditions necessary for combustion. कितनी? 3 conditions है जो बहुत जरूरी है combustion process के लिए. Number 1 कि there should be a combustible substance. सबसे पहले एक combustible substance present होना जरूरी होता है. Now what do we mean by combustible substance? So combustible substance एक ऐसा substance जो कि actual में burn होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, उस सब्सटेंस को कंबस्टिबल कहते हैं. सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. एयर या ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए बिकॉज इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज नोन एज सपोर्टर फॉर कंबशन. थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे combustible substance. So a substance that can burn, in other words, a combustible substance is the main requirement for combustion. So एक ऐसा substance जो burn हो सकता है या फिर जो actual में सबसे पहली requirement है combustion process के लिए, उसको हम combustible substance बोलेंगे. Second है supporter of combustion. Combustion का supporter I told you oxygen या air, because air में oxygen present होती है. So combustion कहाँ होता है? Where there is a presence of a supporter of combustion. ठीक है, और वो क्या है? एयर, है ना. एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, that is the supporter of combustion. Example, during the combustion of magnesium, charcoal and coal, air और oxygen is the supporter of combustion. आप मैग्नीशियम बर्न कर रहे हो, चारकोल, कोल, ये सब क्या है? ये तो combustible substance हो गए, लेकिन इनके combustion के लिए जो मेन सपोर्टर रिक्वायर्ड है, that is air और oxygen. Next, a combustible substance starts burning when it attains a particular temperature. The lowest temperature at which a substance starts burning is called its ignition temperature. Different substances have different ignition temperature. A matchstick catches fire when it is rubbed against a rough surface. A burning matchstick can set a piece of paper to fire immediately, but it cannot set a piece of wood to fire. This is because wood and paper have different ignition temperatures. Some substances that have very low high ignition temperature do not catch fire easily, while some substances like LPG, petrol that have low ignition temperature catch fire easily. So these substances are called inflammable substances. So क्या बोल रहे हैं कि combustible substance के लिए सबसे पहले तो हमें मतलब combustion के लिए एक combustible substance required था, second supporter required था, and third was ignition temperature. Now what is ignition temperature? एक ऐसा substance या एक combustible substance burn होना तभी start करता है जब वो एक particular temperature पर आ जाता है. ठीक है, जैसे कि जितना मतलब वो लोवेस्ट टेम्परेचर जितने पे एक सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट लोवेस्ट टेम्परेचर विल बी द इग्निशन टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, जिस
लोवेस्ट टेम्परेचर पे a substance will start burning will be known as its ignition temperature. अब हर एक सब्सटेंस का जो ignition temperature होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि एक मैचस्टिक कप, जब हम उसको किसी मैच बॉक्स की जो रफ सरफेस होता है उसके अगेंस्ट जब क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो फायर कैच कर लेती है। फिर आप उस बर्निंग या फिर उस जो मैचस्टिक के थ्रू, बर्निंग मैचस्टिक के थ्रू अगर एक पेपर को बर्न करना चाहोगे तो पेपर बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर उसी मैचस्टिक के थ्रू अगर आप किसी वुड के पीस को बर्न करने की कोशिश करोगे, इट विल टेक टाइम, बिकॉज जो वुड का पीस है इट इज हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड जो पेपर था उसका लो इग्निशन टेम्परेचर था। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो वो सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, ठीक है, उनका इग्निशन टेम्परेचर लो कंसिडर किया जाता है, फॉर एग्जांपल एलपीजी, पेट्रोल एंड ऑल। लेकिन जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, काफी हाई होगा, दे विल नॉट कैच फायर वेरी इजीली, सच एज दैट पीस ऑफ वुड। ओके, चलो, सो जो सब्सटेंसेस आपके फायर इजीली कैच कर लेते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कंबशन। नंबर वन इज कंप्लीट एंड द अदर इज इनकम्प्लीट कंबशन। सो कंप्लीट कंबशन क्या होता है? वेयर देयर इज इनफ ऑक्सीजन टू सपोर्ट कंबशन और बर्निंग प्रोसेस, जहां पे काफी अच्छी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट होगी बर्निंग प्रोसेस के लिए, सच टाइप ऑफ कंबशन विल बी नोन एज कंप्लीट कंबशन। एग्जाम्पल, फ्यूल है प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। If there is insufficient oxygen to support combustion or burning process, the combustion is called incomplete combustion. ठीक है, जब प्रॉपर एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट नहीं होती है बर्निंग प्रोसेस के लिए, सच अ प्रोसेस इज नोन एज इनकम्प्लीट combustion. Example they have given when methane is allowed to burn in insufficient oxygen. मीथेन एक गैस है, उसको हम insufficient amount of oxygen में जब बर्न करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन जब सफिशिएंट अमाउंट में आपका कोई भी सब्सटेंस बर्न होता था या फिर जब कंप्लीट कंबशन होता है तो जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं दैट इज नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ वेरी डेडली पॉइजनस गैस। दिस इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जैसे फ्यूल है, यहाँ पे मीथेन है, आपने उसको ऑक्सीजन दैट इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करा तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट मिलती है। ओके, चलो, नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। तो कंबशन को फर्दर उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, कितने? 3 टाइप्स में। नंबर 1 रैपिड और फास्ट कंबशन। तो जब एक सब्सटेंस बर्न इमीडिएटली ऑन हीटिंग, बहुत हीट करने पे तुरंत बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, ऐसे कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल LPG, CNG, पेट्रोल, इन सबको क्या, इन सबका जो कंबशन है दैट इज रैपिड और फास्ट कंबशन। ओके, नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। So some substances when exposed to air catch fire on their own. This is called spontaneous combustion. तो अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो खुद ही बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको खुद ही फायर कैच कर लेते हैं। Such substances and such kind of combustion is known as spontaneous combustion. Example, when white phosphorus is left open in air, it starts burning. जब white phosphorus को आप openly air में रखते हो तो वो तुरंत फायर कैच कर लेता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। Such kind of combustion will be known as spontaneous combustion. Next is explosion. On our festivals, we ignite crackers that burst suddenly with explosive sound, heat and light. This is called explosion. Sometimes explosion may occur by applying pressure. फेस्टिवल्स पे आपने देखा है कि आप जो क्रैकर्स वगैरह को बर्न करते हैं आप उन्हें इग्नाइट करते हैं, यानी कि पहले उनको उस टेम्परेचर पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो बर्न होना स्टार्ट होंगे। सो इग्नाइट करने के बाद क्या होता है, वो तुरंत बर्न होते हैं और बर्न होने के बाद एक एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। दिस इज नोन एज एक्सप्लोजन। ओके, कभी कभी एक्सप्लोजन प्रेशर अप्लाई करने से भी हो जाता है। ठीक है, चलो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सी, नाउ दे हैव गिवन an activity for us. See, take 2 lighted candles and fix them on the table. Cover one candle with an inverted gas jar so that it gets cut off from air. क्या बोल रहे हैं कि 2 lighted candles लेने हैं कुछ इस तरीके से और उनमें आपको मतलब टेबल पे आप फिक्स करोगे, उसके बाद किसी एक कैंडल को आपको इन्वर्टेड गैस जार से कवर कर देना है सो दैट उसको क्या ना मिले, एयर की सप्लाई उसकी कट हो जाए।
उसे एयर ना मिले। Now what do you observe? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? The candle that is kept open keeps on burning, but the one that is covered with an inverted gas jar extinguishes after some time. This is because the oxygen inside the inverted jar gets used and after some time has the candle extinguishes, whereas the other candle gets oxygen continuously, so it keeps on burning. So जब आपने ये सेटअप करा तो कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो कैंडल ओपनली रखी थी वो तो बर्न होती रहेगी, लेकिन जिसको हमने एक इन्वर्टेड गैस जार से कवर कर दिया वो कुछ टाइम बाद एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में जब हमने उसको कवर किया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जितनी ऑक्सीजन अंदर ट्रैप हो गई वो तो यूज हो जाएगी। जब तक वो यूज हो रही है तब तक आपके कैंडल बर्न होगी, लेकिन जब सारी वो ऑक्सीजन अंदर जो ट्रैप हुई थी वो यूज हो जाएगी, देन द कैंडल विल एक्सटिंग्विश। दिस मीन्स व्हाट कि कंबशन के लिए एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो। Now ignition temperature or kindling temperature. A combustible substance must be heated to a certain minimum temperature before it can catch fire, and this temperature is called the ignition temperature. Thus the minimum temperature required to burn an object is called as ignition temperature. So एक combustible substance को हमें एक minimum temperature तक क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, जब तक वो फायर कैच नहीं करता। उसके फायर कैच करने से पहले हमें उसे एक मिनिमम टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, ठीक। सो वो मिनिमम टेम्परेचर ही इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर कंबस्टेबल सब्सटेंस। मीन्स व्हाट, द मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन वी हैव डिस्कस्ड, है ना, क्या होता है जहाँ पे आपका जो सब्सटेंस है वो एक इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड अलोंग विद वाटर, हीट एंड लाइट. Such kind of combustion is known as incomplete combustion. Now there are some disadvantages of incomplete combustion, among which the number one is that the unburned carbon particles produced in the form of soot or smoke pollute the atmosphere and block chimneys in factories. जब आपका प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली बर्न नहीं होते हैं और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं सूट या स्मोक, एंड दैट सूट एंड स्मोक क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। प्लस अगर फैक्ट्रीज वगैरह में अगर इसका यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो चिमनीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है। सो इस तरीके से इसका एक डिसएडवांटेज है। प्लस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, विच इज अ हाईली पॉइजनस गैस। आई टोल्ड यू कि इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है जो कि काफी पॉइजनस गैस होती है। अगर इसको हम ज्यादा अमाउंट में इनहेल करते हैं देन इट कैन सफोकेट अ पर्सन टू डेथ। ठीक, ज्यादा अमाउंट में अगर आप इनहेल कर लेंगे तो आपको सफोकेशन होगी एंड इवन इट कैन कॉज टू डेथ। प्लस इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू वेस्टेज ऑफ फ्यूल। जब आप किसी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन करवाते हो तो वहां पे फ्यूल का वेस्टेज भी होता है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है? नंबर वन, लीव प्रॉपर गैप्स बिटवीन लॉग्स ऑफ वुड सो दैट सफिशिएंट एयर रीचेस देम फॉर द कंप्लीट कंबशन। जब हम वुड के लॉग्स को बर्न करते हैं तो उन सबके बीच में हमें प्रॉपर क्या गैप मेंटेन करना चाहिए सो दैट प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर उनको मिले और वो कंप्लीटली बर्न हो। यूज द ग्रेट फॉर होल्डिंग द बर्निंग सॉलिड फ्यूल। गेट इज अ फ्रेम ऑफ पैरेलल आयरन बार। ठीक है, क्या हमें जो सॉलिड फ्यूल होते हैं उनको बर्न करने के लिए गेट का यूज करना चाहिए। ग्रेट क्या है? ग्रेट एक फ्रेम है पैरेलल आयरन बार्स का जिससे आप किसी बर्निंग फ्यूल को होल्ड करते हो। इससे क्या होता है, एयर का फ्री मूवमेंट होता है और सॉलिड फ्यूल क्या ऐश से दूर रहता है। नाउ यूज विक स्टोव फॉर गैसियस फ्यूल कंबशन। आपको विक स्टोव का यूज करना चाहिए अगर आप किसी गैसियस फ्यूल को कंबस्ट करते हैं। विक स्टोव क्या होता है, इसमें एक परफोरेटेड शील्ड होती है विक के अराउंड, ओके, जो क्या करती है, फ्रेश एयर मतलब सप्लाई करती है कॉन्टिन्यूसली सो दैट कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। फिर जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं सच एज CNG एंड LPG, है ना, इसमें आपने देखा होगा कि अगर हम इसे यूज करते हैं स्टोव में भी तो स्टोव में भी होल्स होते हैं। हमारे गैस स्टोव में LPG का कंबशन होता है ना, विच इज अ काइंड ऑफ गैसियस फ्यूल। सो हमारे LPG स्टोव में भी ऊपर बर्नर में छोटे छोटे होल्स होते हैं सो दैट प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती रहे, एयर मिलती रहे एंड दे शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली एंड रेगुलरली। सो उन होल्स को प्रॉपर्ली हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए सो दैट कोई पार्टिकल्स उसमें क्या करना दे, उस होल को ब्लॉक ना कर दे और जो सप्लाई ऑफ एयर है वो ना रुक जाए, है ना। चलो, नाउ वी कम टू व्हाट, फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या है? वो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट।
हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं कब, बर्निंग पर, उनको हम फ्यूल्स कहते हैं। फ्यूल्स आपके 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल, सो वो फ्यूल्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, उनको हम सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल वूल, कोल, cow dung, cake, etc. It should be wood. It's not wool, it's wood. Now, next is liquid fuels. Liquid fuels क्या होंगे, जो आपके liquid form में होते हैं at the room temperature. They are known as liquid fuels. Example petrol, diesel, kerosene, etc. Next is gaseous fuels which are in gaseous state at room temperature. जो room temperature पे gaseous state में होंगे उनको हम gaseous fuel कहेंगे. Example LPG, CNG, biogas, etc. Okay, चलो. Now they have given us some definitions kind of such as fuel. Fuel क्या है, वो substances that produce heat and light energy on burning are called fuels. Second is calorific value of fuel. This is very good. See, calorific value क्या होती है, the amount of heat produced in kilojoule when a gram of fuel is completely burned in it's called calorific value. जब आप किसी फ्यूल के 1 ग्राम को completely burn करते हो, so वो completely burn होने के बाद कितना heat energy produce करता है in kilojoule. Kilojoule is a kind of unit in which the energy is measured. Now heat is a kind of energy. जब आप किसी फ्यूल को बर्न करोगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट मीन्स आप अगर हीट एनर्जी को मेजर करोगे तो किलोजूल में मेजर किया जाएगा बिकॉज इट इज द यूनिट टू मेजर एनर्जी. ओके, सो when we burn 1 gram of fuel, then how much quantity or how much kilojoule of heat energy is produced? That is the calorific value of that particular fuel. Okay, चलो. Now what are the harmful effects of combustion of fuel? अब हम जब फ्यूल्स को कंबस्ट करते हैं so उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है. So combustion of fuel is a major cause of pollution in atmosphere. सबसे पहला कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो पोल्यूशन होता है उसका मेजर कॉज फ्यूल का कंबशन है. ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं जब उनको कंबस्ट किया जाता है. अब कैसे, सी, सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. Although carbon dioxide is non-toxic, but its increased concentration leads to undesirable changes in the climate. Carbon dioxide gas absorbs infrared radiations emitted by the sun and leads to excessive heating of the Earth's atmosphere, which affects all the life on the Earth. This is called greenhouse effect. This in turn causes the average temperature of atmosphere to rise, which is called global warming. So, जब हम फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है हमारे एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड नॉन टॉक्सिक है, नॉन पॉइजनस गैस तो है, लेकिन जब इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, तो इससे हमारे क्लाइमेट में कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस आने लगते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सन से जो रेडिएशंस, हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो एमिट होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और जिससे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर ज्यादा हीट अप होने लगता है, बढ़ने लगता है और उससे फिर जितनी भी लाइफ ऑन अर्थ सर्वाइव कर रही है सभी इफेक्ट होते हैं. दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है एक्चुअल में कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, नाउ जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि जब प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर नहीं मिलती है, तो आई टोल्ड यू क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एक पॉइजनस गैस है. फिर अगर हम ऐसी एयर को जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है उसको इनहेल करते हैं तो ये क्या करती है, हमारे अंदर जाके हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है और एक स्टेबल कंपाउंड बनाती है विच इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक, फिर जब हमारे बॉडी के अंदर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनता है, ये क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने से रोकने लगता है और जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती है तो फिर फाइनली हमें सफोकेशन होने लगती है एंड देन वी डाई. नाउ नेक्स्ट क्या है, कोल कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. कोल के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं जिनको आप जब बर्न करते हो, कोल इज अ काइंड ऑफ फ्यूल, उसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन है, आप उसे बर्न करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं. और सल्फर और नाइट्रोजन एक तरीके के नॉन मेटल है, इनकी ऑक्साइड्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगी एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. दैट मींस ये जितनी भी ऑक्साइड्स होंगी ये कोरोसिव और पॉइजनस होंगी. फिर जब रेन होती है, रेन में ये जितनी भी ऑक्साइड्स हैं ये क्या
रेन वाटर इन ऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है और क्या बनाता है, एसिड बनाता है। फिर ये एसिड क्या होता है, नीचे आता है, फॉल डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन बहुत हार्मफुल है टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये हमारी जो मार्बल बिल्डिंग्स होती हैं उनको भी क्या कर देता है, टार्निश कर देता है, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को कॉरोड कर देता है। ठीक है, चलो। प्लस जब हम फॉइजर फ्यूज को बर्न करते हैं, इट आल्सो प्रोड्यूस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एंड स्मोक व्हिच आर हेल्थ हैजार्ड्स। यानी कि फॉइजर फ्यूज को बर्न करने से कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, है ना, और काफी हेल्थ हैजार्डियस होते हैं। उसके बाद द बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड लेड कंपाउंड्स व्हिच इज ब्लैक। दैट मींस जब ऑटोमोबाइल्स में आप पेट्रोल जो होता है उसको बर्न किया जाता है, वो भी क्या करता है, कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है और कुछ लेड कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लैकिश कलर के होते हैं। फिर ये लेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉइल और प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी फूड चेन के अंदर एंटर करते हैं और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को देन दे कॉज। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कंट्रोलिंग फायर. So as we have seen that for combustion to take place, we require oxygen from air, initial temperature and a combustible substance. Fire can be very destructive. Every year, many people lose their lives because of house, factory or shop fire. We need to learn how fire can be controlled in order to prevent accidents caused due to fire. So अभी हमने पढ़ा combustion के लिए एक तो air में से oxygen, initial temperature और एक combustible substance की requirement होती है। ठीक है, हर साल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस फायर की वजह से अपनी लाइफ खो देते हैं, क्योंकि कभी घर में, कभी फैक्ट्री में, कभी शॉप में फायर हो जाती है एंड फायर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट जो एक्सीडेंट्स होते हैं फायर की वजह से वो उसमें ज्यादा नुकसान ना हो। सो फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है कुछ कंडीशंस को टारगेट करके। नंबर 1 कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है दैट शुड बी क्विकली रिमूव फ्रॉम द एरिया टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ फायर। जहां भी आग लगी है, जहां भी फायर कॉज हुई है, तो आगे और आग ना बढ़े, फायर ना फर्दर प्रिवेंट मतलब स्प्रेड हो, उसमें सबसे पहले हमें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को वहां से रिमूव करना चाहिए। ठीक है। Secondly, bringing the temperature of the substance below its ignition temperature. This is done by cooling the substance mainly by using water. Fire from wood, paper or any other substances with high ignition temperature is preferably put off by using water. फिर हम किसी भी जो substances वहाँ रखे हैं उनके temperature को उनके ignition temperature से नीचे ला के भी fire को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कैसे किया जाता है कि जो वहाँ substances हैं उनको water का यूज करके कूल डाउन किया जाए। ठीक है, जैसे कि जो फायर आपकी वुड, पेपर है, किसी और सब्सटेंस की वजह से होती है जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, उसको यूजुअली हम कैसे बाय यूजिंग वाटर ओनली पुट ऑफ करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा कंबशन का सपोर्टर है उसकी सप्लाई को भी हम कट ऑफ कर सकते हैं, और वो क्या होता है, एयर। इन दैट एयर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, उसको कट ऑफ कर देंगे तो भी आपकी फायर आगे कंट्रोल की जा सकती है। अब ये कैसे किया जाएगा, बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन सपोर्टर ऑफ फायर। वहां पे फायर के जो नॉन सपोर्टर है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बना लेती है फायर के अराउंड, क्योंकि वो ज्यादा हैवी होती है देन ऑक्सीजन, और इस पर्पज से जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रेजेंट होती है। सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए स्मॉल फायर ऑफर इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, छोटी छोटी कहीं आग लग जाए, है ना, इमरजेंसी के सिचुएशंस में आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज योर फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या होता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक हैंड हेल्ड सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसके अंदर कॉम्प्रेस्ड गैस होती है और वो डिस्चार्ज हो जाती है जब हम फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नंबर 1 टू कट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और एयर। पहला कि उसे ऑक्सीजन के साथ फायर का जो कॉन्टैक्ट है उसको कट ऑफ करना होता है। सेकेंड, जो टेम्परेचर है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लाने की कोशिश किया जाता है बाय कूलिंग। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्लेम। फ्लेम क्या है, सी हम सबको पता है कि सभी बर्निंग सब्सटेंसेस, ऑल द बर्निंग सब्सटेंसेस डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जितने भी बर्निंग सब्सटेंस होते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओनली दो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन बर्निंग दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। फॉर एग्जांपल, molten wax and kerosene oil rise through a wick
and are vaporized during burning and form flames. Charcoal does not produce a flame because it does not vaporize during burning. सिर्फ वही substances आपके produce करेंगे flame जो burn होते वक्त vaporize हो जाते हैं. सिर्फ वही fire burning के वक्त क्या करते हैं, flame produce करते हैं. Example, molten wicks, kerosene oil, ये क्या करते हैं, ये wick के through ऊपर की तरफ rise होने लगते हैं, है ना, और vaporize हो जाते हैं when they are burned. That means they will produce flame. लेकिन चारकोल क्या होता है, चारकोल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि वो बर्निंग के वक्त वेपराइज नहीं होता है. जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन होती है तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंप्लीटली बर्न होते हैं. जब कंप्लीटली बर्न होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं ब्लू फ्लेम. ठीक है, लेकिन जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो एक येलो कलर की फ्लेम ऑब्टेन होती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपके फ्यूल के अंदर कार्बन के एटम्स हैं वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो पाते हैं, अनबर्न रहते हैं, जिसकी वजह से येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है. बर्नसेन बर्नर फ्लेम आपकी ब्लू फ्लेम होती है, ये जो आपके घर में स्टोव्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर होल्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है. लेकिन जब ये एयर होल अगर किसी भी पार्टिकल्स की वजह से क्लोज हो जाएंगे तो वहीं पे फ्लेम आपकी येलो प्रोड्यूस होने लगती है. Now next is candle flame. Candle flame क्या आपको पता है, कैंडल एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट. इसमें क्या होता है, एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ फ्यूल होता है, यानी कि वो वैक्स होती है, और एक उसके अंदर एम्बेडेड क्या होती है, विक होती है. नाउ फ्यूज, फ्यूज के क्लासिफिकेशन, तो हम फ्यूज को 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर. ओके, सो वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं ऑन हीटिंग, ओके, उनको हम फ्यूल कहते हैं. एग्जाम्पल, वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा, दीज ऑल आर फ्यूल्स. अब सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्स क्या होंगे, वो फ्यूल्स विच आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होंगे, दोज फ्यूल्स विल बी नोन एज सॉलिड फ्यूल्स. एग्जाम्पल, कोल, वुड, कोक, चारकोल, एनिमल डंग, बायोगैस एक्सेट्रा. नाउ लिक्विड फ्यूल्स क्या होंगे, द फ्यूल्स that occur in liquid state, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होंगे, उन फ्यूल्स को लिक्विड फ्यूल्स कहा जाएगा. एग्जाम्पल, पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, कैरोसिन, स्पिरिट एक्सेट्रा. थर्ड इज गैशियस फ्यूल्स क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे गैशियस स्टेट पे होंगे, such fuels will be known as gaseous fuels. Example, natural gas, biogas, coal gas, water gas, producer gas etc. नेक्स्ट इज नेचुरल फ्यूल्स. अब इनको हम प्राइमरी फ्यूल्स भी कहते हैं, नेचुरल फ्यूल्स को, बिकॉज दीज आर द फ्यूल्स दैट अकर इन नेचर, जो नेचर में अकर करते हैं और उनको हम एज इट इज फॉर्म में यूज करते हैं, सेम फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो नेचर में अकर करते हैं उसी फॉर्म में हम उनको यूज करते हैं. एग्जाम्पल, आपके वुड, कोल, नेचुरल गैस, एनिमल डंग, केक, क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है, ये सब आपको नेचुरल फ्यूल में आता है. नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड फ्यूल को सेकेंडरी फ्यूल कहा जाता है, बिकॉज ये फ्यूल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, जो प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद. ठीक, एग्जाम्पल, चारकोल, कोक, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा. नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. एक अच्छे फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो एक फ्यूल को एक गुड फ्यूल तब कहा जाता है जब उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है which they have discussed with us, among which number 1 is कि it leaves no residue after burning. एक ऐसा फ्यूल जो बर्न होने के बाद कुछ भी रेसिड्यू नहीं पीछे छोड़ता, such a fuel will be a good fuel. Secondly, कि मिनिमम पोल्यूशन कॉज करे, है ना. थर्ड, it should have moderate rate of burning. उसका जो बर्निंग रेट है वो मॉडरेट होना चाहिए. चीप होना चाहिए फ्यूल, इजिली अवेलेबल हो, ठीक है. हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, यानी कि जब आप उसकी पर यूनिट को कंज्यूम करोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, तो दैट मीन्स उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी. फ्यूल शुड बी इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट करना इजी होना चाहिए, हैंडल करना आसान होना चाहिए उसको. नेक्स्ट, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है दैट शुड बी लो, ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी फायर इजीली कैच कर ले, लेकिन रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. चलो, नाउ देयर इज एज सच नो फ्यूल विच हैज ऑल दीज प्रॉपर्टीज. अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई फ्यूल है नहीं जिसमें ये सारी ही प्रॉपर्टीज हो, इसलिए कोई भी फ्यूल आइडल फ्यूल नहीं होता है. अगर हमें किसी फ्यूल को सिलेक्ट करना है तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं. जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं सच एज एलपीजी, सीएनजी वगैरह, ये ज्यादातर इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से मैक्सिमम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेते हैं गैसियस फ्यूल्स, ओके. इसीलिए वो ज्यादातर एक्सीलेंट फ्यूल्स होते हैं और उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स, ठीक है. नाउ
नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? See, the efficiency of a fuel is mainly decided by the amount of heat it releases on complete combustion of its 1 kg of a fuel, and this is known as the calorific value of the fuel. So, fuel efficiency means calorific value only, यानी कि जब आप किसी फ्यूल की एक यूनिट को प्रॉपरली बर्न करते हो, कंप्लीट कंबशन होता है, तो वो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट विल बी द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। ठीक है, और उसी से किसी फ्यूल की एफिशिएंसी को डिसाइड किया जाता है। तो जो फ्यूल्स की कैलोरिफिक वैल्यू होती है उसको यूज किया जाता है किसी फ्यूल की एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए। जितनी ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगी किसी फ्यूल की, वो उतना ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल होता है, जितना उतना ही ज्यादा बेटर फ्यूल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब जो कैलोरिफिक वैल्यू की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, kilojoule per kilogram is the standard unit for measuring calorific value of a fuel. Now they have given some calorific value of some fuel such as biogas की होती है 35,000 to 40,000 kilojoule per kg, kerosene की होती है 46,000, पेट्रोल की 45,000, डीजल की 48,000। ओके, चलो LPG की है 50,000 to 55,000, मीथेन की 55,000, हाइड्रोजन गैस 1,50,000, एनिमल डंग 6,000 to 8,000, wood की 17,000 to 22,000, coal is of 25,000 to 33,000 and charcoal की 33,000. Now harmful effects of burning of fuel. Fuel को burn करने के harmful effects क्या क्या है? So there has been a tremendous increase in the consumption of fuels over a period of time, which is giving very harmful effects to the environment and ecology of the earth. The effects are listed as follow. So क्या हुआ है कि जब हम आज के टाइम पे फ्यूल्स का बहुत ही क्या ट्रेमेंडस लेवल पे क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो है हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहले कि जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है वो क्या करती है, ऐश और कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एयर में रिलीज हो जाते हैं, और ये पार्टिकल्स सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। सो व्हाट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM? ये काफी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये आपके क्लोज को स्पॉइल करते हैं, विजिबिलिटी रिड्यूस करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, है ना। विंटर्स में ये फाइन पार्टिकल्स ही होते हैं जो स्मॉग प्रोड्यूस करते हैं, व्हिच इज फर्दर व्हाट हार्मफुल टू अस। प्लस सम फ्यूल्स आर देयर जिनकी बर्निंग की वजह से क्या होती है, काफी आपकी पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, सच एज कोल, वुड, है ना। ये क्या रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। जबकि अगर आप पेट्रोल को बर्न करो तो ये आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन की, ये किस में डिजोल्व हो जाती है, रेन वाटर में डिजोल्व जब होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रहती है, बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है, वो भी एटमॉस्फेयर में आती है, तो ये सारी ऑक्साइड्स उस रेन वाटर के साथ मिक्स होकर प्रोड्यूस करती हैं एसिड। फिर ये सारा पानी आपका नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन फिर आगे बहुत हार्मफुल है आपके क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक। प्लस ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करती है। नेक्स्ट, कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, and an increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere leads to an increase in the temperature of the earth, as carbon dioxide is greenhouse gas. This is called greenhouse effect. It causes global warming, leading melting of polar ice caps, which leads to rise in the level of water seas and oceans, leading to flood in coastal regions. अब क्या है, जब हम फ्यूल्स को कंबस्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर का, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, यानी हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जो हमारी क्या है आपके पोलर आइस है, आइसबर्ग्स है, वो मेल्ट होने लगते हैं, और वो मेल्ट होकर सारा पानी नीचे आता है, आने से वो वाटर सीज ओशंस में जाता है, वहाँ उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने से कोस्टल एरियाज में फ्लड्स वगैरह के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर हम फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो फिर वहाँ प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो कि एक पॉइजनस गैस है, और इस पॉइजनस गैस को जब हम इनहेल करते हैं तो ये क्या करती है, सफोकेशन क्रिएट करती है, एंड इवन द डेथ ऑफ अ पर्सन मे ऑल्सो
happen. Okay, chalo. So the chapter is completed. We have discussed about the various effects of burning of fuels. We have discussed about the types of combustion and many more things. I hope the chapter was very clear to you. Okay, so chapter is completed. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.